Good morning, children. How are you? I hope you will be fine. So now, today we start your 6th standard subject history and topic the Indian subcontinent and history. The Indian subcontinent and history. In the last video, we have seen the geographical conditions and history. In the last video, we see the geographical conditions and history. And now today we have seen the geographical features of India. Geographical features of India. So students, our country India है ये very far and wide. हमारा देश वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल है. But there is a line in the north. In India, in the north side is the Himalayas, east side is the Bay of Bengal, south side is the Indian Ocean, and the west side is the Arabian Sea. It's the four border of the India. So now we have to choose to the map. So here is the east side of the India is the Bay of Bengal. South side is the Indian Ocean. West side is the Arabian Sea. And the north side is the Himalaya mountain. You see Himalaya mountain. आप देख रहे हैं उत्तर साइड में हिमालय माउंटेन है. एंड द ईस्ट साइड इज द बे ऑफ बंगाल. इसके ईस्ट साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल. एंड द साउथ साइड इज द इंडियन ओशन. और साउथ में आप देख रहे हैं इंडियन ओशन मीन हिंद महासागर है. एंड द वेस्ट साइड इज द अरेबियन सी. आप देख रहे हैं इसके वेस्ट साइड में अरेबियन सी है. So now here is the important region, the 6 regions of the India. We are seen to be important when we look at the course of Indian history. हम देखने वाले कि इंडियन हिस्ट्री में कौन से रीजन बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पढ़ने के लिए. फर्स्ट वन द हिमालय. सेकेंड वन द प्लेन ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर. Second one, the plain of Sindhu, Ganga, Brahmaputra river. Third one, the Thar desert. Next one, the Deccan Plateau. Fifth one, the coastal region. And the last, the island in the sea. So dear students, you can see to the map. So see here in the first one, the Himalaya mountain. First one is the Himalaya mountain. Yeah, and the next one is the plain area of the Sindhu, Ganga and Brahmaputra rivers. Plain area of Sindhu, Ganga and Brahmaputra rivers. And the third one is the Thar desert. You saw here the Thar desert. And the next fourth one is the Deccan Plateau. It's all of the part of the, you see here the Deccan Plateau. And the next fifth one, the coastal regions of India. You see the coastal regions of India. आप देख रहे हो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट है. देखिए आपको कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया. एंड द लास्ट वन द आइलैंड एंड द सी. द आइलैंड एंड सी. द फर्स्ट वन अंडमान एंड निकोबार. सेकंड वन इज द लक्षद्वीप. यू नो एक्सेप्ट द अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड the whole of India is the contiguous. तो बच्चों पता होना चाहिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इन दोनों को छोड़ के बाकी होल पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया जितना भी पार्ट है क्या है? कॉन्टिग्यूअस है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, खंडित है. ये सब एक साथ में है. सो इट इज द फर्स्ट पार्ट इज द हिमालय. The Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent. The Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent. Dear students, you see the Hindu Kush and Himalaya mountain. It just make a wall. कैसी वॉल ना कैसी जगह चाहिए जिससे कि इम्पेनेट्रेबल में जहाँ से हवा मतलब वहाँ से कुछ भी पास होना अभेद मतलब बहुत ही मुश्किल है. क्योंकि बहुत ही मुश्किल है नॉर्थन साइड ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट.
इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर साइड में ऐसी वर्ल्ड क्रिएट करती है हिमालय और हिंदुकुश में जहाँ तक कि हवा को भी पास होना बहुत ही मुश्किल होता है, इज द इम्पेनेट्रेबल। तो देयर इज a land route through the Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountain. There is a land route through the Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountain. तो पता है कि वहाँ पर खाइबर एंड बोलन पास दो पासेस है, हिंदू कुश माउंटेन है। यू आर सीइंग द मैप। इसे फर्स्ट वन इज द खाइबर पास एंड सेकंड वन इज द बोलन पास। इट्स टू पास इन द sorry student, here is the Khyber and Bolan passes. It passes from the China to Central Asia and reaches is the Arabian region. वो कहाँ आता है? खाइबर पास होते हुए चाइना से होते हुए वो सेंट्रल एशिया से गुजरते हुए लास्ट में अरब तक ये रोड पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अरब। दिस रूट वॉज कॉल्ड आल्सो सिल्क रूट। ये जो रूट है इसे क्या कहते हैं? सिल्क रूट भी कहते हैं। वाई? Because silk is the main commodity just for exporting the the western countries. Silk is the main commodity to exporting in the western countries. क्योंकि सिल्क जो था उस समय जो सिल्क था वो क्या मेन मुख्य वस्तु थी जो वेस्टर्न कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। वेस्टर्न कंट्री में लोग एक्सपोर्ट करते थे। After that, dear student, this way the many foreign inventors have come to the India. बहुत से विदेशी राष्ट्रकारी इसी रूट के जरिए कहाँ पर आए? हमारे इंडिया में आए हैं इन द एंशियंट टाइम। एंड मेनी फॉरेन ट्रेवलर्स ही आल्सो कम टू द इंडिया। बहुत से विदेशी यात्री भी इसी रूट के जरिए इंडिया में आए हैं। तो नाउ वी सी द सेकंड पॉइंट ऑफ the plains of Sindhu, Ganga and Brahmaputra river. The plains of Sindhu, Ganga, Brahmaputra river. हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से। इज द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर कंपेयर टू रिवर इज द बेसिन ऑफ द थ्री बिग रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये क्या हुआ है? तीन बड़ी नदियों सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र से और जो उनकी सहायक नदियां हैं देयर ट्रिब्यूटरीज उनके द्वारा ये पूरा एरिया बना हुआ है। So here, this region extends from Sindh, Punjab in the west to the present day Bangladesh in the east. ये जो पूरा प्रदेश है ये कहाँ पर? सिंध पंजाब से वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में सिंध पंजाब में और प्रेजेंट डे में बांग्लादेश इन ईस्ट साइड मतलब पूर्व साइड में बांग्लादेश में प्रदेश फैला हुआ है। फॉर द मैनी Indian civilization is a Harappa, many states and many empires have created here. बहुत से एम्पायर, बहुत से मतलब राज्य, स्टेट मतलब प्रदेश और उनके अलावा जो हमारी एंशियंट सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति जो सिविलाइजेशन है सबसे प्राचीन, वो भी हमारे यहाँ से ही उनके मिलते हैं हमें। एंड नाउ वी आर सीइंग द मैप। The whole area is the Sindhu, Ganga and Brahmaputra. There, Indus River is called Sindhu River. And next one the Ganga and the third one is the Brahmaputra River. These three rivers, the whole of the area is making the Sindhu, Ganga and Brahmaputra rivers. जो पूरा एरिया है कैसे बना है? सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के बेसिन से उनके लागे मेटेरियल्स का एरिया बना हुआ है। इन्हीं एरिया में प्राचीन समय के हड़प्पा संस्कृति के अवशेष, उसके अलावा बहुत से राज्य, बहुत से एम्पायर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मतलब इमर्ज हुए, बहुत से एम्पायर यहाँ पर विकसित हुए हैं प्राचीन एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज द थर्ड डिजर्ट। सो हियर द थर्ड डिजर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। The third is spread across Rajasthan, Haryana and some part of Gujarat. वैसे जो स्टूडेंट जो थर्ड रिजल्ट है वो कैसा है? हमारा राजस्थान, गुजरात और सम पार्ट ऑफ हरियाणा, मतलब जो हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात है, इनके कुछ हिस्सों में वो पूरा फैला हुआ है। आफ्टर दैट इसको सम पार्ट इज द पाकिस्तान। इसके कुछ हिस्से हैं, कुछ इसके हिस्से कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान में चले गए हैं।
You will know that before 1947 पाकिस्तान and बांग्लादेश were also part of India. आपको पता होगा 1947 के पहले जब हमारा विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय जो पाकिस्तान था और जो बांग्लादेश था वो भी हमारा इंडिया का ही पार्ट था. तो ये जो थोड़ा पार्ट है द सम पार्ट ऑफ द थर्ड एरिया इज द गो फ्रॉम द पाकिस्तान. कहाँ जा रहे हो? पाकिस्तान में चला गया है. एंड द रिवर द घाघरा रिवर इज द ओरिजिन इन हिमाचल प्रदेश एंड थर्ड रीजन. जो हमारा घाघरा नदी है वो हिमाचल प्रदेश से निकल कहाँ पहुँचती है? थर्ड रीजन में. एंड इट इज आल्सो नोन एज पाकिस्तान हाकरा रिवर. और इसी रिवर को जो घाघरा रिवर है इसी रिवर को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हाकरा रिवर. तो इसमें सी है इन द थर्ड रीजन नॉर्थ साइड इज द सतलज रिवर. नॉर्थ साइड इज द सतलज रिवर. ईस्ट साइड इज द अरावली माउंटेन. South side is the Run of Kutch and the west side is the Indus River. It's also called Indus River. It's also called Sindhu River. ये जो इंडस रिवर है इसे हम सिंधु रिवर भी कहते हैं. तो ऐसे ये जो थर्ड जेट है उसका हम आपको मैप में दिखाते हैं. सॉरी यू कैन सी द मैप. द थर्ड जेट इज द नॉर्थ साइड इज द Satluj River. You see here, north side is Satluj River, and the east side is the Aravalli Mountain. East side is the Aravalli Mountain, and south side is the Run of Kutch. You see in the Gujarat. South में Run of Kutch कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में. And the west side is the Indus River. You see here, Indus River. West side is the Indus River. It is also called the Sindhu River. क्या कहते हैं हम? सिंधु रिवर भी से हम कहते हैं. Different course in Rajasthan and Pakistan. The Ghaggar River, its course in Rajasthan and Pakistan has now dried up. जिसका रिवर्स यहाँ पे आया बल्कि इसका जो कोर्स है जो पार्ट है वो क्या हो गया है? पाकिस्तान में और इंडिया में जो पार्ट है वो सूख गया है. सो देयर पार्ट इज फाउंड इन द एंशियंट हड़प्पा सिविलाइजेशन. यहाँ पे बहुत सी हड़प्पा सिविलाइजेशन की प्राचीन सभ्यताएं मिली हैं. हड़प्पा सिविलाइजेशन. टुडे स्टूडेंट we have to see the first one the Himalaya mountain. Second is the plain area of the Sindhu means Indus, Ganga and Brahmaputra rivers. And the third one is the third result. And other three parts, the Deccan Plateau, the coastal area and the island. We are seeing the next part. So dear student, please write down your homework. Write down your homework. Question number first. Which mountain ranges lie in the North India? Which mountain ranges lie in the North India? Means North India. इंडिया के नॉर्थ साइड में कौन से माउंटेन्स हैं? मैं आपको पहले बताया था फर्स्ट में. क्वेश्चन नंबर 2. Which are the routes to India from the northwest? Which are the routes to India from the northwest? ऐसा कौन सा रूट है जो इंडिया से नॉर्थ वेस्ट में जाता है? अभी मैंने आपको बताया. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द नेम ऑफ द इंडियन आइलैंड. राइट द नेम ऑफ द इंडियन आइलैंड. भारतीय जो आइलैंड है इंडियन आइलैंड है उसके नाम बताना आपको. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू वी सी द थर्ड रिजन? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू वी सी द थर्ड रिजन? इंडिया के कौन कौन से पार्ट में हमें थर्ड रिजन दिखाई दे रहे हैं? देखिए वन टाइम रिपीट होगा. क्वेश्चन नंबर 1. विच माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 2. विच आर द रूट टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट? क्वेश्चन नंबर 3. राइट द नेम ऑफ द इंडियन आइलैंड. एंड द लास्ट क्वेश्चन. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू वी सी द थर्ड रिजन? So dear student, today we see the geographical features of India and their three types. And now other three types we will see in the next video. Thank you student.